subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to my class. Today I should discuss the second portion of the chapter transportation of materials. In my last video I have discussed about the circulatory system, that is heart, blood vessel and blood. And today I shall discuss about the circulation of blood. My first point is circulation of blood, then excretion and transport of substances in the plants. Hope you are well, stay healthy and stay safe. And if you are new in my channel, then subscribe my channel to grow up my channel, and if you like my video, then press the like button and press the bell icon also, so that when my next video will uploaded, you will automatically notify. So let's start today's topic. The first topic is circulation of blood. In my last video I have discussed about the blood. That is, blood is a red color fluid which flows inside our body and which have several functions, and it consists of three types of plasma, that is red blood cell, another is white blood cell and platelet. And we have discussed about the red blood cell, what is red blood cell, why it is called red blood cell, and white blood cell, what is the function of white blood cell, and what is platelets. So now circulation of blood, come to the point circulation of blood. In my last video I have discussed about the structure of heart. That is, heart consists of 4 chambers. Basically 2 halves are there in a heart. One part is that side and another part is this side. And inside these 2 sides, also divided by 2, that is, a human heart consists of 4 chambers: right articles, right ventricles, left articles, left ventricles. Understand? So today I shall discuss circulation of blood, how the blood circulate towards the whole body from the lungs. So basically blood जो है वो purified blood or oxygenated blood is received by the left articles from the lungs. पहले क्या होता है, ये lungs में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहा गया है, क्योंकि लंग्स में जब एयर हम जो सांस लेते वो कहा जाता है लंग्स में, और वहां से निकल के क्या होता है, पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड के साथ वो सर्कुलेट होता है. उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड होके ब्लड के साथ होके वो फिर से आता है. तो यह क्या कहा गया है कि purified blood or oxygenated blood is received by the left auricles from the lungs. Left auricles यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे lungs में से जो oxygenated blood है, वो lungs में से oxygenated blood जो है वो आता है कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल्स. लेफ्ट ऑरिकल्स से आने के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है इसका, तो ये लेफ्ट ऑरिकल पे आता है. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर होने के कारण वो नीचे चला जाता है, नीचे यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे. लेफ्ट वेंट्रिकल पे आने के बाद वो क्या होता है, यहाँ से पास होके मतलब यहाँ से पास होके वो जाता है राइट आर्टरी. राइट आर्टरीज में आने के बाद वो आर्टरी होके वो पूरे बॉडी में चला जाता है, और पूरे बॉडी में जाने के बाद
वो वेन से होता हुआ ये वेन से होता हुआ वो फिर से वो लंग्स या वो हार्ट पे आ जाता है। यानी कि आर्टरीज जो हमने पढ़ा है, आर्टरीज वो क्या होता है, आर्टरीज ब्लड को ले जाता है और वेन जो है वो ब्लड को वापस लाता है। कहाँ पे? वो हार्ट पे वापस लाता है। हार्ट पे आने से पहले वो किससे मिलता है? वो मिलता है लंग्स से। लंग्स से मिलने के कारण वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन मिक्स होता है वहां पे। होने के बाद वो क्या होता है, लेफ्ट आर्टरीज पे ऑरिकल्स पे या ऑरिकल्स पे जाता है। उसके बाद प्रेशर होने के कारण नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे। उसके बाद वो राइट आर्टिकल पे जाता है। उसके बाद आर्टरी से होकर पूरे बॉडी में वो चक्कर लगाता है। उसके बाद वहां से वेन से होके वो फिर से वही लंग्स में आता है और लंग्स में आने के बाद वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होके निकल जाता है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ था जो ब्लड, वो क्या होता है, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली होता है, मतलब 1 मिनट हुआ उसके बाद खत्म, ये नहीं, कंटिन्यूअसली ब्लड क्या हो रहा है, लंग्स में से आ रहा है और आने के बाद हार्ट में से बाहर निकलता है। उसके बाद पूरे बॉडी में चक्कर लगाता है, फिर से वही वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक वो कभी रुकता नहीं। अगर रुकेगा तो हम भी मर जाएंगे। तो ये गया है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है। अब एक वर्ड है कि हार्ट बीट का मतलब क्या है? हार्ट बीट का मतलब यह है कि द रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो हम क्या होता है, रेगुलर कंस्ट्रक्शन में यानी कि वो ऐसे कंस्ट्रक्ट हो जाता है और एक्सटेंड यानी कि वो खुल जाता है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कह सकते हो। उस प्रोसेस में हमने देखा था कि इनहेलेशन पे वो हमारे जो सांस जो लेते हैं उसके बाद वो जो चेस्ट है वो क्या होता है, अप हो जाता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो जब वो हम सांस छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, हम जो सांस लेते हैं उसके बाद वो जो रिलैक्स करते हैं, छोड़ देते हैं, तब जो प्रोसेस है उसको हार्ट बीट कहा गया है। अब नॉर्मल हार्ट बीट इसलिए 1 मिनट का अगर हम देखें तो पर्सन का 65 to 75 तक होता है। 1 मिनट में कितना वो हार्ट बीट होता है, यानी कि 65 से 75 तक। और अगर हम फास्ट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे जो हार्ट बीट रेट जो है वो क्या होता है 150, तब क्या होता है 150। और नॉर्मली 65 to 75 वो रहता है 1 मिनट में। 1 मिनट के अंदर वो हार्ट कितना बीट होता है 65 to 75। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो वो क्या होता है 150 तक जाता है, यानी कि मिनट पे 1 मिनट पे क्या होता है वो 150 टाइम्स क्या होता है वो बीट करता है। तो ये गया है हार्ट बीट। अब क्या है, हार्ट बीट जो है वो नापने के लिए एक मशीन की जरूरत है, एक डिवाइस जिसको कहा गया है कि स्टेथोस्कोप। क्या है तुम देख सकते हो, ये मैंने कुछ ड्राइंग किया है स्टेथोस्कोप का। तो ये क्या काम आता है, ये काम आता है कि हम हमारे हार्ट बीट कितना है वो हम नाप सकते हैं। अगर हम किसी भी एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्टेथोस्कोप उसके पास है, जो क्या करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर या बॉडी का वो या हमारे जो हार्ट बीट वो या जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो हम आसान तरीके से नाप सकते हैं। ये स्टेथोस्कोप का काम है। तो इसका भी कुछ है, ये स्टेथोस्कोप का पीसेस भी है, कुछ पार्ट्स है जो हम देख लेंगे। तो पहले आता है ईयरपीस, यानी कि वो ईयरपीस जो वो डॉक्टर जो अपने कान पे लगाता है उसको बोलते हैं ईयरपीस। देन आता है कनेक्टिव ट्यूब, यानी कि ये ईयरपीस को क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके साथ, चेस्ट पीस, यानी कि चेस्ट पे जो लगाते हैं उसको चेस्ट पीस कहा गया है। ईयरपीस जो डॉक्टर ने लगाया उसको ईयरपीस कहा गया है। और इन दोनों को जो ट्यूब ने जोड़ा है उसको बोला गया है कि कनेक्टिव ट्यूब।
तो ये टू बी ओवर। नाउ पॉइंट इज कीपिंग द हार्ट हेल्दी। अब हार्ट को हम कैसे हेल्दी कर सकते हैं? हार्ट को हम हेल्दी कर सकते हैं अगर हम क्या करते हैं, फैटी सब्सटेंस यानी कि फैट जिसमें है, यानी कि मीट हो या फिश हो या बाजार में जो मिलते हैं चिप्स वगैरह हो, इन सब में क्या होता है, फैट मिला हुआ है। तो अगर हम फैट को कंट्रोल यानी कि फैट अगर खाना छोड़ दें, यानी कि इसको हम अगर कम कर लें, तो हम अपने ब्लड को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ब्लड को स्ट्रांग रख सकते हैं, ब्लड को प्यूरिफाइड रख सकते हैं। और अगर हम ये सब खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी जो है वो लार्ज होता है और ये ब्लड में भी असर पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट यानी कि एक प्रॉपर प्लान रख के, ध्यान में रखकर खाना चाहिए। किसी भी एक चीज हो या कुछ भी, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करके हमें चलना चाहिए या खाना चाहिए, ताकि हमें लॉन्ग लिव हो सके हम। Now come to the point excretion. Excretion is nothing. It means that the removal of waste product or the unnecessary products from the body. हर वो चीज है जो क्या करता है, जो अननेसेसरी है वो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। और वैसे भी हमारे बॉडी पे भी कुछ है अननेसेसरी थिंग्स जो हम क्या करते हैं, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं। तो उसको बोला गया है कि एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कैसे होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन जो है वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक है जिसके अंदर से वो पूरा एक्सक्रीशन जो है वो होता है। वहां पे एक सिस्टम है जिसको कहा गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका कुछ ऑर्गन्स है जो हम देख लेंगे। एक है कि ए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका कुछ ऑर्गन। अब इन ऑर्गन के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर। किडनीज आर बीन यानी कि वो पी या बीन की तरह होती है, इसलिए कहा गया है कि बीन शेप स्ट्रक्चर जस्ट लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, which each kidney consists of a large number of coiled tubes called nephrons. coiled tube यानी कि इसके अंदर में कुछ ट्यूब है, कुछ छोटे छोटे ट्यूब है, इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब है जिसको कहा गया है कि नेफ्रॉन्स। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ट्यूब है जिसको कहा गया है कि नेफ्रॉन्स। They act as filter and filter waste products from the blood which reaches the two kidneys. The useful substances are absorbed back into the blood. तो ये नेफ्रॉन का काम है कि फिल्टर करना। ब्लड जो है, जो ब्लड के साथ वेस्ट पार्टिकल्स जो था वो यहाँ पे आके फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो बचा रहता है, मतलब वो फिल्टर होने के बाद जो अच्छा वाला रहता है वो क्या होता है, ब्लड के साथ फिर से वो बॉडी पे चला जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे आता है, यानी कि ये ट्यूब है जिसको कहा गया है कि यूरेटर। इसके माध्यम से वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे आता है। यूरिनरी ब्लैडर पे आने के बाद क्या होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है टॉयलेट जाने की, तो वो यूरेथ्रा से बाहर निकल के आता है। तो ये गया है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे ब्लड के साथ जो आता है वो क्या होता है, किडनी पे आके जमा होता है, यानी कि नेफ्रॉन पे आके किडनी के अंदर जो बीन शेप स्ट्रक्चर है उसको किडनीज कहा गया है। उसके अंदर है नेफ्रॉन जिसका काम है कि फिल्टर करना। और यहाँ पे जो फिल्टर होता है वो क्या होता है, फिल्टर होने के बाद जो अच्छा है वो फिर से ब्लड में से होके बॉडी में जाता है। जो वेस्ट है वो क्या होता है, वो यूरेथ्रा यानी कि यहाँ से आके वो यूरिनरी ब्लैडर पे रहता है। और जब जरूरत पड़ती है हमें टॉयलेट की, तो वो यूरेथ्रा से बाहर होके निकल जाता है।
यानी कि वो यूरिन हो या टॉयलेट हो, तुम पकड़ सकते हो। तो ये गया है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि वो किडनीज, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स के बारे में। और कुछ ऑर्गान से जो क्या होता है वो एक्सक्रीट करता है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है। जैसे हम देखते हैं कि लंग्स क्या करता है, फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या है, हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन पे जो ब्लड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो वो एक्सक्रीट कौन करता है, लंग्स करता है। देन हम देखते हैं कि स्किन फॉर रिमूवल ऑफ स्वेट जो है एक फ्लूइड है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, और ये जो स्वेट है वो स्किन में से होके निकलता है। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर देयर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब क्या है, वो जो स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो हम खाने में खाते हैं वो रिमूव करता है। देन आते हैं लिवर फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस शुगर बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि लिवर जो है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो क्या करता है, जो हम एक्सेस शुगर जो हम खाते हैं उसको कन्वर्ट करता है किससे, ग्लाइकोजन से वो कन्वर्ट करता है। तो स्वेट जो हमने कहा है वो क्या है या स्वेटिंग क्या है वो हम थोड़ी देख लेंगे। तो स्वेटिंग ये है कि प्रोडक्शन ऑफ ए वाटर फ्लूइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इन द स्किन हैज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो क्या करता है वो क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी जो है वो उसका जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करता है। It has to keep the body cool by losing body heat through evaporation of sweat, यानी कि हमारे बॉडी को कूल रखने में वो स्वेट जो है वो काम आता है। तो ये गया है कि स्वेट। अब एक वर्ड है कि डायलिसिस, DIALYSIS, डायलिसिस वो प्रोसेस है जहां पे हम लोगों ने सुना है कि कभी कभी हम सुनते हैं कि इस आदमी का एक किडनी खराब हो गया या इस आदमी का दोनों किडनी फेल हो गया यानी कि खराब हो गया। अब किडनी के बिना वो कैसे फिल्टर होगा, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकलेगा। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, आर्टिफिशियली एक डायलिसिस मशीन है, आर्टिफिशियली वो इंट्रोड्यूस करते हैं। डायलिसिस जो है एक मेथड है जहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसको क्या करा ब्लड में से वो क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड, यानी कि ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो उससे अलग करने में डायलिसिस मशीन जो डायलिसिस मेथड होता है वहां पे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो ब्लड में से अलग करते हैं। उसको कहा गया है कि डायलिसिस ये मशीन से होता है, ये आर्टिफिशियली एक मेथड है। अगर कोई किसी का एक किडनी या 2 किडनी खराब हो गए हो तो वो डायलिसिस मशीन पे डायलिसिस प्रोसेस पे क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो ब्लड में से अलग करते हैं। जो किडनी नहीं कर पा रहा हो वो क्या करता है, डायलिसिस मशीन डायलिसिस मेथड पे वो करता है। द फंक्शनिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी जो है वो हम अगर देखेंगे तो पेज नंबर 137 पे तुम देख सकते हो कि कैसे होता है। यहाँ पे एन आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस मशीन एट वर्क, यानी कि वो मशीन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है ये हम पिक्चर पे देख सकते हैं। तो ये गया है कि डायलिसिस। नाउ कम टू द पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब हमने ये चैप्टर है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब तक हमने पढ़ा है कि एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स में वो मटेरियल्स जो है वो इनसाइड द बॉडी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है।
अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बेसिकली प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक है वाटर एंड अनदर इज फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और वाटर का या मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब क्या है, हमारे यहाँ हमने देखा है कि आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करता है, जो ब्लड को ले जाता है पूरे बॉडी में, और वेन्स क्या करता है, ब्लड में से वो फिर से वो लंग्स में ले जाता है। सेम उसी तरह क्या है, प्लांट में भी दो ट्यूब है, एक है कि जाइलम ट्यूब एंड अनदर इज फ्लूएम, यानी कि जाइलम टिश्यू एंड फ्लूएम टिश्यू कहा गया है इन दोनों को। जाइलम यानी जाइलम स्पेलिंग इज जाइलम and phloem, two tissues are there. Xylem ये होता है और ये होता है phloem। अब xylem क्या करता है और phloem क्या करता है हम देखेंगे। तो पहले xylem में जाने से पहले हम phloem देख सकते हैं। एक आसान तरीका है इससे मेमोराइज करने का। phloem यानी कि फू यानी कि फूड में तुम अगर देखोगे तो ये क्या होता है, फूड एंड फ्लूएम में भी ऑल्सो फूड। प्रोनाउंसिएशन लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, फूड यानी कि फ्लूएम, फूड, फ्लूएम फूड, यानी कि फ्लूएम जो है वो क्या करता है, फूड का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड का हो जाने के बाद क्या रहता है, वाटर। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और फ्लूएम फ्लूएम एंड फूड। तो ये तुम आसान तरीके से मेमोराइज कर सकते हो कि फ्लूएम का काम क्या है। फ्लूएम क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी में देता है या ले जाता है। और जाइलम क्या करता है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों का होता है, एक होता है वाटर और मिनरल्स का एंड अनदर इज फूड। ये दो या तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स बॉडी के। तो फ्लूएम और फूड दोनों प्रोनाउंसिएशन पे वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, इसलिए तुम मेमोराइज करने में आसान होगी कि फ्लूएम क्या करता है, फूड पार्टिकल्स यानी कि फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी में ले जाता है। और रहता क्या है, वाटर एंड मिनरल, जो काम क्या है, जाइलम का। ये दिया है कि जाइलम एंड फ्लूएम। अब क्या होता है कि जाइलम जो है वो क्या होता है, पहले हम जानते हैं कि एक प्लांट कहाँ से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे क्या करता है, अपना खाना बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट तो वो डायरेक्टली पा लेता है। अब वाटर कहाँ से लाएगा, रूट में से वो मिट्टी से वाटर लेता है। रूट में से होने के बाद वो क्या होता है, जाइलम से होके पूरे बॉडी में जाता है, यानी कि टॉप ऑफ द बॉडी पे भी जाता है और वहां पे जो लीफ है वहां पे जाके पहुंचता है। ये जाइलम का काम है, जाइलम ट्यूब्स का ये काम है, ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे खाना बन जाता है तब वो क्या होता है, पूरे बॉडी को जरूरत है ना, हमारे बॉडी में जो हम मुंह से खाते हैं सिर्फ वो मुंह में ही रहता है क्या, नहीं, वो हर एक बॉडी पार्ट्स पे जाता है फूड जो है। वैसे ही प्लांट में भी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे जो फूड बनता है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में जाता है। अब ये काम है कि फ्लूएम का। फ्लूएम क्या करता है, पूरे बॉडी में वो फूड ले जाता है, यानी कि ब्रांच हो, स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, कहीं पे भी वो फ्लूएम का काम है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो जाइलम जो है वो जो वाटर पार्टिकल्स, जो वाटर और मिनरल जो मिट्टी में से लेता है, वो सिर्फ 100% यानी कि 100 लीटर अगर लेगा तो उसका मतलब ओनली 3 लीटर वो यूज करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे ये 3 लीटर और 97 लीटर क्या करेगा, वो छोड़ देगा। मतलब वो अननेसेसरी प्रोडक्ट फॉर द प्लांट्स। वो पानी तो लेता है 100 लीटर यानी कि 100% जो लेता है, उसका मतलब
3% वो यूज करता है और 97% क्या करता है, छोड़ देता है। मैंने यहाँ पे 100 लीटर इसलिए कहा कि 100% इससे आसान हो तुम्हें, तो जो 1 लीटर लो या 2 लीटर या 3 लीटर जितना भी लीटर हो उसका सिर्फ 3% यानी कि 3% वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे और 97% वो क्या करता है, छोड़ देता है। अब ये कहाँ से छोड़ता है या किससे छोड़ता है, तो हमने पढ़ा है कि स्टोमाटा क्या है, टीनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको स्टोमाटा कहा गया। स्टोमाटा का हमने फंक्शन देखा था कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करने में वो स्टोमाटा का हाथ है, यानी कि स्टोमाटा में से होके वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और स्टोमाटा का और एक भी काम है कि वो क्या करता है, ये जो 97% वाटर है वो रिलीज करता है। ये उसी स्टोमाटा से ये वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ये क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, जिसको इन प्लांट इसको कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस वेयर प्लांट बॉडी रिलीज द अननेसेसरी और वेस्ट ऑफ या वाटर, जो है अननेसेसरी प्रोडक्ट यानी कि वाटर ही है जो क्या करता है, स्टोमाटा से बाहर निकल देता है। इवापोरेशन प्रोसेस क्या है, जहां पे पानी हो या कुछ भी वो इवापोरेट होके चला जाता है। तो उसी तरह स्टोमाटा में से होके वो जो 97% अननेसेसरी वाटर है वो क्या होता है, बाहर फेंक देता है। वो प्लांट्स क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन, जहां पे क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, यानी कि अननेसेसरी प्रोडक्ट है जो बाहर फेंक देता है। हमने देखा है एक्सक्रीशन में कि अननेसेसरी प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी पे है वो क्या होता है, बाहर निकल देते हैं हम या फेंक देते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है प्लांट्स में से वो क्या करते हैं, 97% वाटर जो है वो स्टोमाटा से बाहर फेंक देता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन, ट्रांसफर हुआ है तो उसको कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो पानी, ये सपोज यहाँ पे पेड़ है, इसका रूट क्या करता है, वाटर पार्टिकल्स को खींचता है पूरे ऊपर एक पार्ट से। यहाँ पे भी क्या होता है, वो वाटर जाता है, यानी कि लीफ अगर यहाँ पे है तो वहां से यहाँ पे कैसे जाता है। तो ये एक बेसिक आसान है कि आसान प्रोसेस है, वेरी सिंपल प्रोसेस। जिस तरह हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉ से पेप्सी हो या कुछ भी या मैंगो हो कुछ भी, हम क्या करते हैं जूस जो है वो हम या कोल्ड ड्रिंक हो वो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ में से ऐसे खींचते तो वो अंदर चला जाता है। सेम उसी तरह क्या होता है, ये जाइलेम जो है, ये जाइलेम ट्यूब है, यहाँ पे क्या करता है, एक स्ट्रॉ का काम करता है जो पत्ते पे ले जाने में हेल्प करता है। जाइलेम कहाँ से, मिट्टी से। तो फॉर टुडे it's over now. Your task is to read out the chapter carefully so that you can understand more easily and start learning materials that I have provided you in my WhatsApp classes. And if you need, then you can contact me. And if you have any suggestion regarding the chapter, regarding the class, and if you have any confusion, any doubts, then you can clear it. You can ask me in comment box also and also in my WhatsApp number. So stay healthy and stay safe, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to give a like. If you like my video, then give a like or press the like button, and please leave a comment. Thank you.